burning the Ravana within, how Ramayana can help us to focus on our lower nature, and how we can improve our lower nature, and how we can understand our shortcomings and we can work on it. That we have seen in the itself first session. Second session we had a lessons from the characters of Ramayana, and there we have seen the great character of Lord Ramchandra, Lakshmana, Bharata, Shatrughna. These four characters we have seen, and today we will see a summary of Ramayana, what is there in Ramayana, that we will see. But first, भगवान रामचंद्र, रामायण मीन्स क्या? स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामचंद्र. तो भगवान की कथा सुनने से, भगवान के बारे में सुनने से क्या लाभ होता है, सबसे पहले वो जानेंगे. क्योंकि पर्पस क्लियर होता है इटसेल्फ. अगर हमें नो वाई क्लियर है, वाई वी हैव टू डू, या सो वी कैन focus, we can have a more focus on it. Yeah. So itself in Srimad Bhagavatam, it is mentioned. First I would introduce Srimad Bhagavatam and then we'll begin. Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is spoken by Lord Krishna on the battlefield of Kurukshetra when Arjuna was confused. To remove his confusion, and to give him proper direction and to establish the dharma, Krishna spoken Bhagavad Gita to Arjuna. What Krishna gave to knowledge to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, that is known as Bhagavad Gita. On this earth, Krishna spends 125 years. So, what Krishna did, it's Srimad Bhagavatam, means as pastimes of Lord Krishna and its various incarnations. Just like Krishna have a 10 incarnations. Krishna also incarnated as a Matsya, Kurma, Vara, Narsimha, Vamana, Lord Ramchandra, Parshurama, Balarama, Buddha and Kalki. There is some years, and later after some million years, at the end of Kali Yuga, 4,32,000 years. Currently कौन सा साल है? 5,251 years is going on, and after some 4 lakhs years or 4,45,000 years something, Krishna again will come as Kalki. So all avatars, leelas, pastimes are mentioned in Srimad Bhagavatam, that is known as Srimad Bhagavatam, and it contains 18,000 verses. It has been spoken before 5,000 years ago, at the end of Dwapar Yuga, after departing of Lord Krishna departed from this earth, and in the beginning of Kali Yuga. Kali Yuga was about to come, and before Kali Yuga, Bhagavatam was spoken on the bank of Ganges, on the Shuktal near Badrinath, upper side, North Himalayas. So अलग अलग उसमें 12 स्कंद है और 18,000 श्लोका है. तो उसमें
फर्स्ट स्कंद में 2 श्लोक है, उसमें 17वें श्लोक में बताते हैं, शृण्वतां सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय स्वभद्राणी सुहनति सुहिसता। बताया गया कि शृण्वतां सुखता कृष्ण, शृण्वताम यानी कि सुनना, स्वकथा किसकी कथा, किसके बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में सुनना। हम अक्सर कथाएं सुनते हैं, पर किसकी? ये जो दुनिया के लोग हैं उनकी कथा सुनते हैं। कथा मतलब उनके बारे में सुनना, या बट हमें क्या मिलता है? उनके दुर्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं और हमें कर्म बंधन लगता है। पर इधर क्या बताया गया है? शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, आपको पुण्य, आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। श्रवण कीर्तनम, कीर्तन यानी कि सुन के दूसरों को बताना भी है, या तो फिर ये एक पुण्य लाभ तो मिलेगा, बोले और कुछ मिलेगा, है ना। हृदयंस्तु अभद्राणी, हृदय में जो अभद्र है, अभद्र यानी कि भद्र यानी कि अच्छे गुण, अच्छा, और अभद्र यानी कि बुरा। तो हृदय में जो अभद्र, हमारे अंदर जो बुरे गुण है, रावण रूपी जो बुरे गुण है, कंस रूपी जो बुरे गुण है ना, सुहिनति सुहिसता, क्या होगा? उसका नाश होगा। और फिर उसके आगे बताते हैं, नष्ट प्राय स्वभद्रेषु, नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उसके आगे के श्लोक में बताया गया, नष्ट प्रायसु भद्रेषु, नष्ट यानी कि डिस्ट्रैक्ट होगा, नष्ट होगा, नष्ट प्रायसु अभद्रेषु, फिर से बता रहे, अभद्र हृदय के दुर्गुण नष्ट होंगे, अभद्रेषु किससे? नित्यम भागवत सेवया। बोले कि कोई बोले कि एक बार सुन लिया तो भी हो गया ना, नहीं नहीं, हमारा क्या है कि जैसे स्टील की दीवार या फिर कंक्रीट की दीवार कितना मजबूत होता है, उससे भी लाखों गुना मजबूत है हमारे हृदय में बैड क्वालिटीज। वो क्या है, बार बार मारना पड़ेगा। एक लात से दीवार गिर जाएगा क्या? हलवा थोड़ी है, या तो एक लात से कुछ ना होगा, या तो ऐसे क्या है, बार बार सुनना पड़ेगा। नष्ट प्राय सुभद्र नित्यम, नित्यम यानी कि डेली, डेली सुनने से ये लाभ होता है। नित्यम भागवत सेवया, भागवत यानी कि ये भागवत की कथा, गीता सुनने से, है ना, और भी लाभ है। नित्यम भागवत सेवया, भगवती, भागवत के 2 अर्थ है, एक तो पुस्तक भागवत और भक्त भागवत। जो भागवत के जो ज्ञान है उसका अनुसरण कर रहे, उसको अपने जीवन में जी रहे हैं, उनकी सेवा करने से, भगवान के भक्तों की सेवा करने से और ग्रंथ भागवत की सेवा करने से। लोग क्या समझते हैं, ग्रंथ भागवत की सेवा करो यानी कि आरती उतारो, पर बुक की पूजा आरती उतारने से ना होगी, लाल कपड़े में बंद रखने से नहीं होगा, बुक को पढ़ने से होता है। साइंस की बुक की आरती करने से नॉलेज आ जाता है क्या? तो ये कैसे आएगा? छू मंत्र है, जादू है, जादू, हाँ, कैसे आएगा? ऊपर तो नहीं देखना है, ऊपर तो कुछ नहीं लिखा है, सीधा देखने से लाभ होता है शायद, हाँ। तो भाव क्या है कि इधर भक्तों की सेवा करने से और सुनने से और पढ़ने से क्या होता है? भगवती उत्तम श्लोके, जो भगवान उत्तम श्लोक है, यस, वो हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, हमारी जो भक्ति है, मतलब हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो स्टडी हो जाती है, और हमारी इंटेलिजेंस, जो हमारी बुद्धि है वो स्टेडी हो जाती है। यस, बहुत लोग जो है स्टेडीनेस के लिए भाग रहे हैं। लोगों को होता है ना, डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में? डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। तो डिसिप्लिन नहीं आना वो किसका कारण है?
अनस्टेडीनेस का, या जब हम स्टेडीनेस को प्राप्त करेंगे, मतलब क्या है, स्टेडीनेस का बाय प्रोडक्ट क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है मतलब क्या है, स्टेडीनेस है, और डिसिप्लिन नहीं है मतलब क्या है कि स्टेडीनेस नहीं है। तो ये स्टेडीनेस खाली भगवान के बारे में सुनने से, क्योंकि बैड क्वालिटीज की वजह से हम इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन और उसका सॉल्यूशंस क्या है कि जस्ट भगवान के बारे में सुनो, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनो ऑथोराइज सोर्स से, आस्था और लक्ष्य टीवी पे नहीं है ना। टीवी सीरियल, यूट्यूब, ये सब कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के ऑथेंटिक रेफरेंस बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं, क्या एब्सोल्युटली नहीं है। सुन के ही लाभ होगा, यूट्यूब पे प्रवचन सुन के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे लाइव सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रसाद नहीं होता है, कीर्तन नहीं होता है, नो। और ऊपर ऊपर से खाली क्या बोलते हैं, झांकी मिल सकते, जैसे गुजराती में बोलते हैं ना, ऐसे नदी में अगर आप खाली पैर डुबोगे, ऐसे गुजराती में बोलते हैं कि छप छपिया करवा, तो खाली ऐसे पैर डुबो के आ जाएंगे तो क्या है, पानी का अनुभव प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए क्या जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। डूबना नहीं है, खाली क्या करना है, अंदर जाना पड़ेगा, तब क्या होगा, लाभ मिलेगा। ऐसे सुनने से क्या मिलता है, बड़ा लाभ मिलता है। ये 2-3 श्लोक है, और एक श्लोक है कि 5 चीजें होती है सिस्टमेटिक। तो वो 5 चीजें क्या, एक श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद रामायण में क्या करेंगे, हम प्रवेश करेंगे। ये सुन के आपका माइंडसेट तैयार किया जा रहा है, एटीट्यूड तैयार किया जा रहा है राम कथा सुनने के लिए, समझने के लिए। यस, तो ये 10वें स्कंद का 7वें अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक है कि उसमें ये बताया गया है कि राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु श्रील सुखदेव गोस्वामी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावने लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। क्या बोले, तत्क्षण धुल जाता है। बुखार की दवाई ली तो 2 घंटा बाद असर करेगी, पर ये क्या बताया, तत्क्षण, इमीडिएट, जैसे कान में प्रवेश किया ऐसे ही दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। सामान्यतः हम श्री भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं। क्या, हाँ, कल्पोग्रह में आएंगे ना प्रभु, हमसे तो ना होगा, या हाँ देखते हैं, हाँ आ जाऊंगा, फिर आएंगे नहीं। क्या, एक व्यक्ति को पूछा गया, आप क्यों नहीं आए प्रभु जी? अरे मेरा कान दुख रहा था। तो कान दुख रहा था तो सुनने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कान से ही सुनना। एक को फोन किया, अरे तभी मेरा बाहर जाना हुआ, क्या? तो लोग तो हमें मूर्ख समझते हैं, पता नहीं चलता। हालांकि मैं कभी फ़ोन नहीं करता किसी को, बट जो कोऑर्डिनेटर से वो फ़ोन करते हैं। हम भी पहले, जब मैं 10 साल पहले आता था तो हम भी कॉल करते थे, तो हमें भी अच्छे अच्छे रीजंस लोग बताते थे। एक व्यक्ति को तो बोलना पड़ा, या तो आप मूर्ख या तो आप हमें मूर्ख समझते हैं, तो समझ गया वो।
कि मंदिर में रहते हैं या फिर मंदिर से फ़ोन आता है तो मूर्ख तो नहीं बनाया जा सकता। मतलब फालतू के रीजंस तो हम दे ही नहीं सकते। सीधा बोल दो, बी ऑनेस्ट कि क्या मेरा इंजन गर्म हो जाता है, मैं अच्छा सुनना नहीं चाहता हूँ, अच्छा बनना नहीं पाता हूँ, अभी मेरा देर है, मैं समय लूँगा, तो थोड़ा बाद में फ़ोन करो। वो अच्छा रहता है, वो अच्छा लगता है कि मेरे के मन इच्छा नहीं है तो कोई कुछ बोलेगा क्या आपको? हाँ, सिंपल। हाँ? अंदर से इच्छा नहीं है तो फिर क्या दिखावा करना? अरे हम तो अच्छे हैं पर ये कारण थे इसलिए मैं नहीं है। सीधा बोल दो नहीं आना है, बात खत्म हो गई। ऑनेस्ट व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। पर हमारे भारत में क्या है, और स्पेसिफिकली गुजरात, बुरा नहीं लगना चाहिए। कुछ भी करो जीवन में, क्या बुरा नहीं लगना चाहिए। पर बोल के नहीं आओगे तो वो ज़्यादा बुरा लगता है वगैरह, है ना। बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं कि पर वो लेक्चर में मज़ा नहीं आया, ये एक व्यक्ति नहीं लाया, लेक्चर में मज़ा नहीं आया, सीधा बोल क्या। यस, सीधा बोलने वाले बहुत पसंद है। ऐसा होना चाहिए जीवन में, या कि आपका बहुत अच्छा होता है, मैं ही नालायक हूँ, मैं ही नहीं आना चाहता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, ज़्यादा सत्य। यस, कभी ऐसा हो तो ऐसा बोल सकते हैं, कोई इशू। या कारण तो बोल सकते कि ऐसा ऐसा है, हमको काम है, कोई इशू। या अगर जिस दिन ऐसा मन ना हो, इंजन भारी भारी लगे तो कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। या तो तक्षण क्या हो जाता है, मैल धुल जाता है। ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट सामान्यतः हाँ, किंतु भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला इतनी आकर्षक है, वे स्वतः मन तथा कानों को क्या लगते हैं, भाने लगती है। आपको क्या लगेगा, अच्छा लगता है। सुने पहले कुछ लोगों को आप बोलते होंगे कि चलना, अरे बोरिंग होगा, रहने दो ना, कौन आएगा, मज़ा नहीं आएगा, है ना। उसको बोलेंगे सुना तो सही, पहले करो तो सही, देखो तो सही, एक बार आओ तो सही, उसके बाद बोलो। या स्वतः ही अच्छी लगेगी। और इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की आसक्ति, जो भवबंधन का मूल कारण है, वो समाप्त हो जाती है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, फिर मूवीज अच्छे नहीं लगेंगे। आध्यात्मिकता कैसा है कि हमें बोलना नहीं पड़ेगा, हम किसी को नहीं बोलते तो मूवीज नहीं देखने चाहिए, तो हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं देखने चाहिए। लोग पहले सुनते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है कि वो तो फालतू लगने लगता है। हायर टेस्ट। अगर आपने बहुत ही क्वालिटी वाला गुलाब जामुन चख लिया तो फिर आप ऐसे जैसा तैसा आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी जो है रिप्लेसमेंट है। आपको जो फालतू चीज़ होगा, जिसमें टाइम पास होगा, वो क्या है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। नॉलेज वाला तो अच्छा लगेगा, पर फालतू चीज़ें आप पहचान जाओगे। इससे आपका क्या होगा, एक अलग पर्सनालिटी बनेगा। लोग पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं फटे हुए कपड़े पहन के, बट ऐसे तो पर्सनालिटी नहीं बनता है ना, कैरेक्टर से पर्सनालिटी बनता है। दूसरा है कि मनुष्य धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होता है। भगवान के लिए प्रेम जागृत होगा कि लगेगा कि हाँ वाह कृष्ण है कि क्या, फेथ आएगा, कन्विक्शन आएगा कि हाँ अच्छा है जो, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान से प्रेम करना। यस, और उसके बाद सभी के साथ मैत्री, अच्छा रिलेशनशिप क्या है, डेवलप होगा। सभी को आप भगवान के कनेक्शन में रहेंगे क्योंकि ये सभी भगवान के अंश हैं। तो इस बहाने मुझे क्या है, अच्छे से डील करनी चाहिए कि क्या। यस, तो कहने का भाव है कि ये सारी चीज़ें होता है, हमारे रिलेशन, पर्सनालिटी, सारा कुछ जो है अच्छा बन जाता है, हम भी खुद डेवलप हो जाते हैं और हम दूसरों को भी सहायता कर सकते हैं। तो ये लेक्चर का बैकग्राउंड था। अभी ओरिजिनल लेक्चर जो राम कथा सुनने आए उसमें हम प्रविष्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।
यस, तो 2 अध्याय में भगवान की लीला बताई है। हम देखते हैं कितना कवर हो पाता है। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे, आप लोग पीछे उच्चारण भी कर सकते हैं। सभी से और भी रिक्वेस्ट है कि थोड़े आगे आगे आ जाइए, और कुछ लोग क्या है दिखते नहीं हैं, तो थोड़ा आगे आगे चेयर लेके आ सकते हैं। तो क्या है ना कि हाँ अभी अच्छा क्लास सेटअप लग रहा है कि लगता है कि कुछ लोग आए, सुनने आए। या तो जो श्लोक हमें समझना है वो आपको उच्चारण कराऊंगा, बाकी तो अनुवाद पढ़ता हूँ। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खटवांग के पुत्र दीर्घ बाहु थे और उनके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ आए। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंश तथा अंशों के अंश के साथ प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तो चारों के चार जो है विष्णु तत्व है। और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, क्योंकि आप सीता माता के पति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं। तो उन्होंने बोला है कि परीक्षित महाराज कौन है? वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। अर्जुन से गीता सुनाया और परीक्षित से भागवत सुनाया। तो बोलते हैं कि वो तो आपके महल में बहुत सारे साधु पुरुष आए, और रामायण तो आपने बहुत सालों पहले हुआ है, तो सुन के ही मतलब रखा है क्या? तो इसलिए मैं क्या करूँगा, रिपीट नहीं करूँगा, थोड़ा संक्षिप्त में क्या करूँगा, वर्णन करूँगा। ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली बहुत सारी रामायण है, पर जो ऑथोराइज रामायण है वो है महर्षि वाल्मीकि की वाल्मीकि रामायण, क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण भी 15 सदी में आई कि क्या कैसे, पर महर्षि वाल्मीकि तो वो खुद रामायण के एक पात्र रह चुके हैं, और उन्होंने खुद ने सारे भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो देखी है क्या। तो वो बहुत अच्छा रहता है कि ऑथर खुद वो जो पास्ट टाइम लिख रहा है, जो बुक लिख रहा है, उसका क्या है, एक भाग है। जैसे आप देखो महाभारत में वेदव्यास जी स्वयं महाभारत के भाग रह चुके हैं, तो बहुत ही अच्छे से, इसलिए लोग बिलीव नहीं कर पाते कि अच्छा वो ऑथर भी तो वो बुक के भाग हो सकते हैं कि क्या, पर वो बहुत ही होता है। लोगों जनरली नहीं होता, ऑथर जो है वो जो भी लिखता है उसका भाग नहीं होता है, पर इसमें क्या है कि ऑथर कुछ भाग थे। तो इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने जो है 24,000 श्लोकों का रचना किया। पर क्योंकि हमें समरी देखना है, तो श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से उसका समरी दिया गया है, इसलिए शुक देव गोस्वामी के द्वारा जो बोला गया है उसको शुक रामायण बोलते हैं। तो उसमें से चर्चा करते हैं। तो उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया। तो अभी वो श्लोक आए उसमें क्या है, रामायण का एक समरी है, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, उसके बाद फिर हम समझेंगे। गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो, बोलो, व्यचरत अनुवम पदभ्याम प्रिया पद्मपदभ्याम प्रियाया पद्मपदभ्याम प्रियाया। ऑब्वियसली जो स्क्रीन होना चाहिए था। तो इसमें बोलते हैं कि
गुरु अर्थे त्यक्त राज्यो। इसके दो अर्थ होते हैं। गुरु अर्थे, गुरुवे मतलब इसमें शब्दार्थ ये है कि भाई पिता की आज्ञा की वजह से उन्होंने त्यक्त राज्य क्या क्या किया, त्याग कर दिया। और दूसरा है कि गुरु के लिए भी राज्य का त्याग कर दिया। जब वशिष्ठ मुनि आए थे, जब वो ताड़का जो राक्षसी थी उसको मारना था, तो जब भगवान रामचंद्र बहुत ही छोटे थे और अभी तो जस्ट खाली अपनी शिक्षा पूर्ण करके आए हैं, तो दशरथ महाराज का इतना आसक्ति और इतना लगाव था कि राम को मत ले जाओ, मैं पूरी सेना और मैं खुद आता हूँ। और बोले नहीं, मुझे तो राम चाहिए। और उसके बाद फिर आगे घूमते घूमते वो मिथिला पहुँचते और फिर सीता माता के साथ उनका स्वयंवर होता है। तो एक वशिष्ठ मुनि की वजह से उन्होंने राज्य छोड़ा। दूसरा है कि भाई गुरु अर्थ तख्त राज्य, कि दशरथ महाराज की इच्छा से उन्होंने क्या किया, राज्य का त्याग कर दिया, उनकी प्रसन्नता की वजह से। आज कौन सा ऐसा पुत्र होगा जो अपना, जिसके पिता बोलेंगे कि तू मेरी खुशी के लिए जा, ये कर दे, घर छोड़ के चला जा, या फिर ये कर, कुछ नहीं क्या। अभी तो अनाथ आश्रम बन चुके हैं और तो क्या बात करें, वृद्धाश्रम बन चुके हैं, तो क्या बात करें पिता की आज्ञा की। पिता को रख ले, वही अच्छी बड़ी बात है। गुरु अर्थे तख्त राज्य व्यचरत अनुभवम। और कहाँ गए, व्यचरत, विहार करते, किधर, जंगल में, एक जंगल से दूसरे जंगल में विहार करते हुए। पद्माभ्याम, क्या BMW से, बैलगाड़ी से, पद्माभ्याम मतलब पैरों से क्या कर रहे थे, वो जंगलों का परिभ्रमण कर रहे थे। प्रियायाम, किसके साथ, अकेले, प्रिया अपनी पत्नी सीता के साथ। ये एक लाइन। दूसरा है पाणि स्पर्श अक्षमाभ्याम, पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मूर्जित पथरोजो, मूर्तिज पथरोजो हरिनंद्र अनुजाभ्याम या पाणि स्पर्श अक्षाभ्याम, या पाणि स्पर्श अक्षाभ्याम मतलब और कैसे उनके चरण कमल थे। पाणि स्पर्श अक्षाभ्याम मतलब कि सीता माता अपने हथेली इधर, ये इधर की स्किन कितनी बहुत ही सॉफ्ट होती है, बोले कि उनके चरण कमल, मतलब उनके चरण कमल इतने नाजुक थे कि सीता माता अगर खुद के हथेली के स्पर्श भी करते थी तो भी उनको क्या लगता था, बहुत ही कठिन लगता था। इतने चरण कमल उनके सॉफ्ट थे। मतलब बटर होता है ना, सबसे सॉफ्ट क्या है इस संसार में, मक्खन है ना, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम। तो स्किन भी इतनी मतलब थोड़ी सॉफ्ट है कि क्या, और उनका तो स्पिरिचुअल बॉडी था। तो कहने का अर्थ है कि वो अगर स्पर्श करती तो भी उनको हार्ड लगता था, नहीं किसी को ऐसे निशान हो जाते, लाल लाल हो जाता, तो वो सहन नहीं कर पाते, इतने उनके चरण कमल सॉफ्ट थे। और ऐसे चरण कमलों से वो क्या करते थे, वन में विचरण करते थे। और जो विचरण करते करते जो चरण में कांटे लग जाते, जो कंकड़ लग जाते, जब लक्ष्मण जो है रात में सोने के पहले जब चरण सेवा करते थे या तब वो निकालते थे, तो प्रभु बोलते थे कि निकालो मत लक्ष्मण। बोले क्यों, आपको लगेंगे। बोले कि एक बार जिसने मेरे चरण कमल की शरण ग्रहण कर ली उसको मैं कभी त्याग नहीं करता। हे प्रभु, कि एक पत्थर भी आ गया तो भी वो अपने चरणों से क्या उसको विलय नहीं करना
चाहते हैं। हे प्रभु के महान, हम तो नहीं कर सकते, बट भगवान, हम करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा उसको, बट भगवान करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ और मार्ग पर चलने से मूर्छित पत्थर हो, जो मतलब जिनकी थकावट घट, मार्ग पर चलने से जिसकी थकावट घट जाती थी, ये वो भगवान या हरिंद्र अनुजाभ्याम, वानराज हनुमान तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हरिंद्र अनुज, अनुज मतलब कि भाई, लक्ष्मण या हरिंद्र मतलब हरिंद्र यानी कि वानराज हनुमान, और अनुजाभ्याम मतलब लक्ष्मण के साथ वो क्या कर रहे थे, आगे बताएंगे। वैरूप्यात शुण पंख्या प्रिय वीर रुषा रोपित भ्रुविजुम्भस्त्र रोपिता भुंज विस्म। या वैरूप्या मतलब कुरूप करने के कारण, रूप बदलने के कारण। कौन? शूर्पणखा। कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा यानी कि जिनके जिनके नाखून बड़े बड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शूर्पणखा। वो शूर्पणखा नहीं है, वो क्या है? शूर्पणखा है। शूर्पणखा जिनके शूर्प यानी कि नुकीले नाखून होते। आजकल बहुत सारे माताएं आपको शूर्पणखा मिलेगी, नो? तो शूर्पणखा क्योंकि वो विचरण कर रही थी वन में, है ना, राक्षसी थी, तो देखा तो अरे अमेजिंग, रामचंद्र भगवान को देख के इतना सुंदर, बोले कि क्या लगते हैं व्यक्ति, क्या सुंदरता है ना। उनकी सुंदरता को देख के मतलब वो अपना रूप बदलना भी भूल गई। वो जैसी थी ऐसी की ऐसी गई। पूतना तो चलो कृष्ण को मारने आई थी तो रूप बदल के आई थी, पर भगवान की सुंदरता इतनी दिखी उसको, इतने सुंदर लगे राम प्रभु कि उनको देख के चीटिंग का भाव भी चला गया। एज इट इज इतना सुंदर लगे कि वो एज इट इज जैसी थी वैसी की वैसी प्रकट हो गई, आई और रोज लेके आई होगी, प्रपोज किया, विल यू मैरी मी। प्रभु बोले कि हरे कृष्ण। तो बोले कि सॉरी यू आर लेट, आई एम रिजर्व। ऑलरेडी वो दिख रही है, वो शी इज माई शिव। ओके, बोले कि पर आपको निराश नहीं होने देंगे माता जी, वो मेरा भाई है छोटा वाला, वो अपनी पत्नी को छोड़ के आया है, अगर उसके साथ आपको जमता है तो वो भी मस्त है, देखो। हाँ ठीक है, तो उसके पास फिर से रेड रोज लेके गए लक्ष्मण जी, विल यू मैरी? तो लक्ष्मण जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है कि मैं सीताराम का दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, तुम अगर मेरे से विवाह करोगी तो तुम्हें मेरी दासी बन के रहना पड़ेगा, और तुम दास की पत्नी तो दासी। हाँ, पर तुम राम से विवाह करोगी तो तुम मेरी स्वामिनी हो जाओगी, तो मैं तुम्हारी भी सेवा कर पाऊंगा। तो बोलो कौन सा अच्छा है, मेरी पत्नी बनना या उनकी पत्नी बनना? बोले कि बात तो पते की कर रहा। तो फिर से रेड रोज लेके
तो प्रभु बोले अच्छा ऐसा बोले? और बोले देखो मैं ये पहली पत्नी है, तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो तुम्हें दूसरी पत्नी बनना पड़ेगा और तुम्हें सीता की दासी बनना पड़ेगा। तो किसी भी स्त्री को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बोले कि तुम उनके पास ही जाओ, वही तुम्हें अपना सकते वगैरह वगैरह। तो उधर फिर से गई, तो बोले कि मैं बताया ना तुमको ऐसा ही है। तो समझ गई कि ये लोग मुझे क्या कर रहे हैं, लॉलीपॉप दे। तो बोले कि जड़ मूल से खत्म कर देता हूँ, जिसके लिए मुझे घुमा रहे उसको ही मार डालती हूँ। तो छुरी निकाला और सीता को मारने जाए तो राम भगवान ने सिग्नल दे दिया, हरि बोल। तो लक्ष्मण जी ने अपना तलवार निकाल के उनका क्या है, नाक और कान काट दिए। सबसे पहला सर्जरी। चलो निकलो इधर से, है ना। तो क्या किया उसने, आप देखो आजकल लोग यही करते हैं। क्या, मुझे मना कर दिया, दूसरे के पास चल गई, एसिड फेंक देता हूँ। हाँ आजकल यही होता है, शूर्पणखा मेंटालिटी। बोले मैं बदला लूंगी, मैं क्या करूंगी, बदला लूंगी। या लव मीन्स सर्विस। वो अटैचमेंट था उसका, वो लव नहीं था। आप जिसको प्रेम, अगर वो वास्तविकता में अगर प्रभु से प्रेम करती तो ऐसा करती। आप जिसको प्रेम करते उसी को नुकसान पहुंचाते है। देयर इज बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। या व्हेन यू सी अ फ्लावर in the garden, yeah, if you like it then you will plug it, if you will love it then you will pour water on it. Yeah, liking like an attachment. Yeah, उसके पास रख देते हैं, पर क्या है, लव मीन्स पानी दो उसको ग्रो करे, क्योंकि तोड़ देंगे तो फिर बस थोड़े समय में क्या जाएगा, मुरझा जाएगा। और लव मीन्स टू सर्व, या सर्विस। हम जिससे प्रेम करते उसकी क्या करना चाहिए, हमें सेवा करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए लव मीन्स सर्विस होता है ना। हमारे सेल्फिश मोटिवेशन या लव के नाम पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है ना। तो आप देखो शूर्पणखा की मानसिकता देखो। शूर्पणखा रावण के पास गई और ऐसा नहीं बोला कि मेरे कुकर्मों की वजह से हुआ है, क्या बोला कि वो वनवासी राम और लक्ष्मण के पास एक बहुत ही सुंदर स्त्री है सीता, और सीता की सुंदरता का वर्णन करने लगी कि क्या बड़े बड़े केश थे, क्या कमल के जैसी आंखें थी, इतनी सुंदर दिखती थी कि अप्सरा भी पीछे के जो। बोले कि आज तक रावण तूने ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी होगी, क्या कैसी इतनी सुंदर स्त्री। मैंने सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री तो तुम्हारी और लंका की पटरानी बनने के योग्य है, तुम्हारी रानी बनने के। बोले कि ये तो मेरे भाई के लिए योग्य, ये वनवासी लोगों के लिए, वनवास में रहने के लिए लायक नहीं है, तो मैं प्रपोज लेके गई थी तुम्हारा। हाँ, रामायण में वर्णन आता है कि सीता दे दो रावण के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया और मेरी ये हालत की। बोल। तो रावण ने खर और दूसर के साथ 14,000 सैनिक भेजे वन में। प्रभु ने 1-2 तीर में सबका हरि बोल कर दिया। समझ में आ रहा आप लोग? या
तो कहने का अर्थ क्या है कि एक ही बार में भगवान ने समाप्त कर दिया, पर आसक्तियों में ऐसा होता है, पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ नहीं होता, क्योंकि प्रभु इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम थे। या बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी टेम्पटेशन में फंसे नहीं। या तभी रावण को चमका नहीं कि जो खर और दूसर कितने पावरफुल राक्षस थे, एक ही बार में उनको मार दा। तो उसके बाद प्रिय विरह, तो उसके बाद क्या हुआ, रावण ने ये सब सुना। हाँ, फिर रावण, जतिन जी इधर, या मारीच के पास गया। अभी मारीच ऑलरेडी मार खाया हुआ है प्रभु से, है ना। उसके पास गया, मारीच बोला अच्छी एडवाइस दूं तेरे को, रहने देना। तू भी मौज कर, मैं भी मौज करता हूँ। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी मंदोदरी और इतनी महान इतनी सारी रावण रानियां हैं, छोड़ो ना, है ना। रात गई बात गई, क्यों इतना धूम मचाए हुए, भूल जाओ, प्रसाद खाओ, भूल जाओ। नहीं, तेरे को आना ही पड़े, ठीक है, फिर मरो, और क्या, मेरे को भी मारो। तो फिर वही है, रावण ने योजना बनाई, मृग बने वो या डियर बने वो, और सीता माता उनसे आकर्षित हो गई। हालांकि वो आकर्षित हो नहीं, भगवान से जितना प्रीति है, भगवान इतना राम जितने सुंदर है, वो एक हिरण से थोड़ी आकर्षित हो सकती है। पर ये तो एक पास टाइम था, क्योंकि रावण के अंत के लिए प्रभु आए थे, या और भी कारण थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भी भगवान आते हैं, ये मेन कारण होता है। राक्षस तो क्या सेकेंडरी पर्पस होता है मारने का। जैसे आप कुछ लेने जा रहे हो, ठीक है, तो कोई बोलता है रास्ते में से ये भी लेते आना, तो आप उसका रास्ते में से लेने के लिए नहीं गए हो, मेन आपका काम करने गए हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो तो सेकेंडरी है। तो रावण को मारना वो सेकेंडरी था। फर्स्ट कारण तो उनके इतने सारे भक्त है, वो भगवान को बुलाते हैं, प्रभु आओ, या तो उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए आते हैं भगवान। या तो बोले कि ठीक है, या तो फिर वो मारीच हिरण बन गए और सीता माता, और वो रियल सीता नहीं थी, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है वो असुर लोग देख नहीं पाते, वो छाया सीता थी, वो ओरिजिनल सीता नहीं थी। या तो वो छाया सीता का किडनैपिंग, हरण हुआ कि क्या, कैसे रावण उठा के ले गया, या साधु के वेश में आके, यस, और उसके बाद पुष्पक विमान के साथ ले गया, पुष्पक विमान में बैठ के, यस, और किसने देखा, जटायु जी ने देखा। जटायु जी बोल ही रहे थे कि अरे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी मेरे शरीर का क्या लाभ है, तो सेवा में भी नहीं लग सकता है कि क्या। पर जैसे ही देखा कि रावण किसी स्त्री को जो जबरदस्ती उठा के ले जा रहा है, तो उनको लगा कि अरे ये तो सीता है, ये तो मेरी पुत्री समान है। या तो उन्होंने बचाने का प्रयास किया, अंतिम सांस तक भगवान के लिए लड़े, फेल हो गए। रावण ने उनके पंख सारे काट लिए और उनको मार गिराया। और जब प्रभु को वो मिले तब वो मृत्यु हो चुके थे। तो आप देखो, ऐसे तो वो मिशन में फेल हो गए, पर आप देखो भगवान के लिए
भगवान रामचंद्र के लिए उनके प्राण छूटे, उनके मिशन के लिए उनके प्राण छूटे, या और उनका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने किया। तो फेल, अपीरेंटली फेल, बट तो भी क्या वो सक्सेस हुए। तो इससे हमें शिक्षा प्राप्त होता है कि अगर आप भगवान की सेवा में थोड़ा भी करते हो, छोटा करो या बड़ा करो, राम सेतु में गिलेरी भी छोटे पत्थर डाल रही थी और हनुमान जैसे बड़े बड़े वानर और हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, पर भगवान ने तो वो गिलेरी का भी कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज किया और बड़ा कंट्रीब्यूशन भी एक्नॉलेज किया। तो हम अपनी सक्षमता के अनुसार भगवान की सेवा कर सकते हैं, और भगवान थोड़ा भी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए क्या है, हमें लड़ना चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए हमें क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। उसमें हम फेल होके भी क्या है, सक्सेसफुल है। पर ये तो क्या लड़े बिना ही हथियार त्याग दिए होते तो इतना बड़ा सौभाग्य मिलता क्या। ऐसे भी मरने वाले था, ठीक है, हम ऐसे भी मरने वाले हैं, सभी लोग मरने वाले हैं कि नहीं मरने वाले। उससे अच्छा है कि कुछ अच्छा करते करते मरे, या शरीर तो ऐसे भी छूटने वाला है, या तो बेटर है कि भगवान के मिशन के लिए, धर्म के लिए अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा, या लोग याद रखेंगे। हाँ, तो सीता माता का हरण हो गया, या प्रिय वीरायाम आरोपित भू विजयशंभो, मतलब कि क्रोध में उठी उनकी भ्रुकुटी हिलने से, या उसके बाद फिर वो गए, उसके बाद बीच में मतलब क्या बोलते हैं, कथा आता है कि भाई वो सुग्रीव के पास सहायता मांगने गए। सुग्रीव बोले कि जिसके हाथ बंधे हो वो कैसे खोल सकता है, मेरी खुद की पत्नी तारा वो बाली के बंधन में बंधी हुई है, या तो प्रभु ने फिर बाली को मारा, उसकी पत्नी का मुक्ति कराया कि क्या। उसके बाद फिर सुग्रीव से हाथ मिला के थोड़े वानरों को दक्षिण में भेजा, थोड़े वानरों को उत्तर में भेजा, थोड़े पूर्व को, थोड़े पश्चिम को, या और उसके बाद दक्षिण में अंगद, हनुमान, अपने ये और कौन थे वो, जामवन, हाँ बाल से मुझे याद नहीं है, ऐसे 3-4 लोगों को भेजा उन्होंने, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्फिडेंस था भगवान को, और हनुमान को भगवान ने अपनी अंगूठी दी थी कि सीता तुम पे विश्वास नहीं करेगी, पर वो तुम क्या एक कॉन्फिडेंशियल कथा बोलना और ये मेरी अंगूठी ले जाना तो तुम्हें सीता पहचान पाएगी, ठीक है। तो अंगद और जामवन और ये सब चर्चा कर रहे थे कि ऐसे भी हम तो वानर हैं, इधर या उधर, हम तो क्या है, पेड़ से फल ही खाते हैं, बिना ढूंढे गए तो सुग्रीव मारेगा, उधर गए तो बोले कि यार हम क्यों करें, हम क्यों सीता को ढूंढे। सुग्रीव की पत्नी के लिए भी हमें लड़ाया गया, अभी राम की पत्नी के लिए भी हमें लड़ाया गया, है ना। बिना मतलब के हम तो पीछे जा रहे हैं, दोनों की पत्नियों के चक्कर में हम गन चक्कर बन रहे। इससे अच्छा इधर ही रहो, है ना, इससे अच्छा इधर ही रहो, फल खाओ, आराम करो, सो जाते हैं, कल सेवा करेंगे, इतना भी क्या होता है ना। पर हनुमान जी के विवेक बुद्धि था, उन्होंने हार नहीं माना, वो निराश हताश होकर आगे आगे बढ़ रहे थे, या तो दूसरे क्या, अभी हनुमान को भी पता नहीं था, पर आप देखो एक ग्रेट हेल्प मिलने वाला है उनको। पता कैसे चला कि रावण के पास है, संपाति ने बताया। हाँ, संपाति भी बूढ़े हो चुके थे, हाँ? संपाति भी सोच रहे थे कि अभी क्या करूँगा, पर संपाति को भी अचानक से मिल गया, बोले कि वो रावण ना ले गए, मैं किस स्त्री को उठा तो रहा था, कौन थे वो पता नहीं, सीता थी, मुझे पता नहीं था, बोले वो। तब हनुमान जी को अपना वो शक्ति याद आया। अंगद बोले अरे मैं तो 20 योजन जा सकता हूँ, बोले कि 60 योजन। हनुमान बोले अपना है 100 योजन वाला, है ना। हम
कर सकते हैं, हम जा सकते हैं। या तो वो गए और फिर मैनक पर्वत बीच में आया था और बहुत सारा बोले ला इधर सो जाओ कि क्या कैसे, ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल आए। फिर वो पार करके सीता माता का अशोक वाटिका में वो लोगों ने क्या किया, उनको मिल नहीं रहा था, वो लंकिनी बीच में आई है ना, उसको भी प्रसाद दिया थोड़ा है ना भैया। उसके बाद फिर अंदर गए तो पूरा महल बहल सब घूम लिया। या आवाज मत करो है ना, सब घूम लिया, पूरा लंका घूम लिया या, पर मिल नहीं रहा था। रावण के चैम्बर में देखा, कुंभकर्ण के चैम्बर में देखा और सभी जगह देख ली, रानीवास सभी जगह, पर वो क्या है, मिल ही नहीं रहा था। या उसके बाद बोले कि यार कहाँ ढूंढूं, तो फिर फल देखे, अरे अरे इधर इधर हो सकता है क्या, फिर उधर देखा कि हाँ इधर है, पता नहीं चला उनको। एक बार तो हनुमान भी सोच रहे थे अरे प्रभु ये क्या, क्योंकि राम मनुष्य लीला कर रहे थे तो रो रहे थे कि सीता के वीर में, अपने भक्त के वीर में रो रहे थे कि सीता मेरे से दूर चले गई, क्या क्या कैसे। तो हनुमान ब्रह्मचारी सोच नहीं पा रहे थे कि ये क्या प्रभु रोते हैं एक स्त्री के लिए। तो जब उन्होंने सीता माता को देखा तो उनको ये भावना आई कि लगता है प्रभु श्री रामचंद्र का हृदय पत्थर जैसा है। बोले कि क्यों, बोले कि वो कैसे जी सकते हैं, सीता माता को देख के उनको ऐसे लगा कि ये सीता के बिना वो कैसे जी सकते हैं। और फिर उन्होंने कथा सुनाई और फिर अंगूठी दिया, और सीता माता क्या है कि देह त्याग करने का सोच रहे थे, पर उनको एक होप मिला है ना, गुरु रूपी हनुमान ने उनको होप दिया कि प्रभु आएंगे नो। सीता माता क्या है, जीव का प्रतीक है कि जब हम भगवान को भूल के दूसरे भोग विलास में लग जाते हैं तब रावण रूपी लंका में ये मतलब ये लंका रूपी हमें ये शरीर प्राप्त होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय वो रावण के 10 सिर के समान है। यस, तो भाव कैसा है कि फिर हनुमान ने पूरी लंका जलाई और चैलेंज दिया और प्रभु को बोला कि चलो सेना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु ने समुद्र देव से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा क्या करो, मार्ग प्रशस्त कर दो। तपस्या की या धनुष कोटि जहाँ से बाण चलाया था, आज भी वो जगह है, पर समुद्र ने से मस नहीं हुआ। बोले कि सारे प्राणियों का क्या होगा। तो फिर प्रभु गुस्सा हो गए, बोले कि एक तीर मारूंगा और तुम्हारा समुद्र क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तब समुद्र बोले माफ कर दो, गलती हो गया, लेट हो गया, प्रसाद खा रहा था। हाँ, तो इसलिए बताया गया भू विश्व त्रस्त हुआ समुद्र। फिर क्या बोला कि मैं आप क्या करो, ये तीर उधर पत्थर के पहाड़ पे चलाओ, फिर आप क्या कर सकते हो, ब्रिज बना सकते हो, सेतु बंद बना सकते हो। तो फिर सारे बंदर, आप देखो भगवान ने कार्य मैनेजमेंट या कैसे अकम्प्लिश किया, बानरों से या अपीरेंटली क्या है, सारे निठल्ले यूजलेस लगते हैं है ना, पर क्या बंदरों से उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश्ड कराया। असली लीडर वही होता है कि जिधर किसी कोई पॉजिटिव क्वालिटी नहीं होता है तो भी क्या है, पॉजिटिव देखता है या, और सभी को क्या है, सर्विस में एंगेज करता है, राइट। तो कहने का भाव क्या है कि फिर राम नाम से पत्थर तैर गए। तो अभी हम भी अगर
भगवान का नाम लेंगे, महामंत्र का जाप करेंगे, या तो हम भी ये भव सागर से तैर जाएंगे। और आज भी रामायण का प्रूफ क्या है? सेतु बन आज भी गूगल मैप में थोड़ा थोड़ा दिखता है, हालांकि ऐसे क्लियरली नहीं दिखेगा, बट क्योंकि इतने सालों पहले हुए, बट तो भी क्या है, दिखता है सेतु बन। या तो कहने का है कि भाई, और उसके बाद लाइन क्या है, सेतु तो बन गया, फिर लंका के बीच में, लंका में प्रवेश नहीं किया प्रभु, कभी लंका नहीं गए थे, उसके बाहर ही त्रस्ताब्धि सेतु खलद बहना, त्रस्ताब्धि सेतु खलद बहना, कौशलेन्द्रो अवतात, कौशलेन्द्र अवतात। या तो ऐसे ही फिर तत्पश्चात या क्या, खलदवह दहन, कि रावण जैसे ईर्ष्यालु लोगों को भगवान ने क्या किया, मार दिया। कुंभकर्ण और भी बहुत सारे जो उसके पार्षद वो सबको मारा, मेघनाथ को मार दिया, उसके बाद रावण को मार दिया। और फिर ऐसे जिसने लंका के राजा रावण को मारा, ऐसे प्रभु का हम क्या करते हैं, शरण ग्रहण करते। तो ऐसे ये श्लोक जो है खत्म हो गया। या नेक्स्ट श्लोक भी यही है। यस, उसके बाद फिर ये क्या है कि पूरा एक समरी बता दिया। उसके बाद बोले सीता का स्वयंवर हुआ, और वो बीच बीच का जो रह गया था वो थोड़ा बताया जा रहा है कि क्या कैसे। यस, तो ये हमने क्या किया, फिर भरत जी ने सौगंध दिया था कि 14 साल प्रभु, 1 साल 1 दिन भी ऊपर हुआ तो हम क्या करेंगे, आप हमारा मरा हुआ देखेंगे क्या। तो उनको जल्दी था, विभीषण को पहले ही राजा बना दिया था, क्योंकि प्रभु को पता था समय नहीं मिलेगा, तो पहले विभीषण को राजा बना दिया। आप देखो प्रभु की महानता देखो, विभीषण बोला कि अगर रावण नहीं मरा तो बोले कि विभीषण मैं तुमको अयोध्या का राजा बनाऊंगा। हाँ अच्छा, तो बोले भरत को क्या दोगे फिर? बोले भरत को मैं वैकुंठ का राजा बनाऊंगा। बोले कि मैं आप सबकी सेवा करूंगा। ये ड्यूटी है। और जिस दिन विभीषण शरण ग्रहण करने आए ना, तब प्रभु ने अनाउंस किया कि आज अगर रावण भी शरण लेने आ जाए ना, तो उसको भी माफ कर। तो प्रभु इतने महान है, भगवान इतने महान है कि सबको माफ कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी गलती क्या है, माफ हो सकता है। और वही प्रभु फिर विभीषण ने फिर विमान दिया, और फिर वो पार्षदों के साथ अयोध्यापुरी लौट आए। और उस दिन को हम क्या बोलते हैं, दिवाली। इसलिए दीपावली कि भाई घर घर दिए नहीं जलते थे, क्योंकि प्रभु चले गए हैं। पर अभी जब प्रभु आएंगे, भगवान राम आएंगे, है ना, तो हमारे जीवन में प्रकाश कब होगा? दिए प्रगटाने से तो नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में प्रकाश कब होगा? कि जब हम भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं का ग्रहण करेंगे, भगवत गीता की शिक्षाओं का ग्रहण करेंगे, और हमारे अंधकार अनर्थमय जीवन में, है ना, भगवत शिक्षाओं का क्या होगा, उद्गम होगा, साक्षात्कार होगा, अनुभूति होगा। और वही अनुभूति से हमारे जीवन में भी क्या होगा, प्रकाश। और तमसोमा ज्योतिर्गमया, ज्योति लाइट की ओर आएंगे। मृत्युर्मा
अमृत गमय, कि हम मृत्यु वाले शरीर में हैं, तो हम क्या है, अमृत, इमॉर्टल। ये कथा वार्ता हमें क्या बनाएंगी, इमॉर्टल, अमृत बनाएंगी। यस, तो इसीलिए सुनते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, जिससे हमारे हृदय के जो गलत भाव है वो दूर हो जाएंगे और सद्गुण अपने आप विकास हो जाएंगे। और हर रोज क्या करना चाहिए, जाप करना चाहिए। किसका, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, और सुनते रहना चाहिए। और जब प्रभु आए तो उसको दीपावली बोलते हैं। और उसी दिन ये देख रहे हो, भगवान को यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया, ये लीला भी उस दिन हुई थी। तो ये पवित्र कार्तिक मास चल रहा है, तो इसमें भगवान को दिया दिखाने का बड़ा महत्व है। तो आप सभी, अभी हम खड़े होके कीर्तन करेंगे और खड़े होके हम कीर्तन करेंगे और सारी लाइटें बंद कर दी जाएंगी, खाली दिए का प्रकाश होगा। पहले 2-3 मिनट कीर्तन कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को इधर क्या करना है, भगवान को, हाँ, उधर रखा जाएगा दामोदर को, क्योंकि इधर वो छोटा पड़ रहा है, हमारा हाइट बड़ा है। तो ऐसे कैसे करेंगे, तो कैसे दिया दिखाएंगे, एक प्रक्रिया होता है, 4 बार दिया भगवान के चरण कमल में घुमाना है, उसके बाद 2 बार इधर नाभि पे, 3 बार मुख पे, और पूरे दामोदर को 7 बार। और भगवान को ध्यान से देखना है, इधर नहीं देखना, तो हमारा ऐसे आकर्षण बढ़ेगा। और फिर पूरा यशोदा मैया और दामोदर को ऐसे फिर 7 बार करके फिर ऐसे पीछे नीचे रख सकते हैं, और फिर से क्या है, आ जाना है, और हम खड़े होके कीर्तन करेंगे। तो इसलिए क्या है कि अपनी अपनी चेयर फिर इसे अभी इतना ज़्यादा सेवा के लिए अपनी चेयर राइट वाले लाइट में, लेफ्ट वाले लेफ्ट में रख के आएंगे, ठीक है।